इनसे बात कर रही है, रजिस्ट्रेशन कराने की बात कर रही है, इनको बुलाने की बात कर रही है। ये कोर्ट में भी बड़ी मुश्किल से आते हैं और हमें अभी डाउट है कि शायद ये रेरा की बात को माने। लेकिन विजय जी, 700 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पैसा इधर से उधर किया गया है। हमारा मकसद है हमें घर मिले, हमारा मकसद नहीं है वो कहीं से भी पैसा ला करके दे। फिलहाल हमारा मकसद है कि हमारे को अपना घर मिल जाए, तो उससे खुश होना चाहिए आपको कि हाँ। ऐसी झूठी सांत्वना हमें बहुत बारी बिल्डर्स दे चुके हैं, हम ले चुके हैं, लेकिन रेरा अथॉरिटी ने नहीं दी है। कि रेरा ने तो हर बार कहा था मैंने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, हमको बुलाएंगे कोर्ट में। वो अभी तो कोर्ट में बहुत मुश्किल से आए हैं कोर्ट में। जब वो कोर्ट में ही नहीं आते, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा सकते, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं तो 50 करोड़ का फाइन कम नहीं होता है। फाइन है, जब लगेगा तो बात करते हैं। जब लगेगा हम देखना चाहेंगे कब कैसे अथॉरिटी इनसे निकलवाती है वो 50 करोड़ रुपए। आप क्या कहेंगे कि आज जो फैसला आया है उस पर आपके क्या जो है क्या टेक है आपका, क्या व्यू है आपका? See, I'm not very happy with the order today. For one reason is that as an authority they had all the rights and then they had all the ammunition to actually put these guys behind the bars. Why I'm saying that is that they haven't even come to the court. Like last time, Oris MD, Mr. Oris, Mr. Vijay Gupta and Amit Gupta, they haven't even come to the court while there were 300 buyers sitting there. And the authority has given them 3 times. We have the records to show that they have given 3 show cause notices or warning letters that they should register the project immediately, else they will take action. But no action has been taken in the last 6 months. They have been continuous to default. So if an authority is not able to get even a simple project registered, we are really doubtful of how they are going to get this done. The second point is that they said ये लोग बना देंगे 2 साल, but there is no action plan as to how it will be done. Buyers have already, the project was deleted almost now this 7 years now. Buyers has not been in a position to pay any money. So we made that request to Judge Saab that please do not forget this. Buyers is not willing to pay any money because they have already the penalties which are going to come, which will be almost twice the amount what they are supposed to pay. So we said, please show us the roadmap of how the funds would come. He himself has agreed and has stated in the media that 700 crores have been siphoned off from this project, both these builders together. Why is that money not being bought back? Why are these people not being put behind the bars to get the money back? Second point, in spite of that, they have issued a RERA registration to a new project of Oris. Oris being the license holder, he was supposed to complete this construction. He has not done. He's defaulted EDC, IDC payment to the government to the tune of 100 crores. After collecting from all of us, he has not deposited. So where is that money gone? Why is it that authorities are still giving them licenses for the new project to fool the other buyers? So that's our problem. So while at the face of it, it looks great, whatever Mr. Judge Saab has said, but those 3 points he has not considered. Where from the money will be coming? Buyers are not going to pay any amount. And then what is the timelines and how they are going to keep them accountable? Because they are not able to keep them accountable even to get the project registered. So our major problem is that while RERA in this place, we are very happy in August when they have issued an order of putting 10 acres under hold of Oris. We said that it's a great thing which has happened. In fact, this has been published across the legal circles within India that RERA has done a great job. So we expect that they be the same people they were in August to drive this forward. They have to get the money back into the project. 700 crores has to come back into this project. Timelines needs to be established. And if things don't move as planned, they should put these people behind the bars. They should not give any more license to these guys unless they complete this project. लाइसेंस ना देना, वो हम आपकी बात से सहमत हैं। हम सहमत हैं कि उनकी जो ज़मीन है वो भी जब्त कर ली जाए। हम इससे भी सहमत हैं कि उनका जो पैसा है वो जो है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट में आना चाहिए। लेकिन क्या जेल भेज देना सोल्यूशन है? प्रोजेक्ट बन पाएगा? नहीं, हम ये भी नहीं मानते कि जेल भेजना कोई सोल्यूशन है। हम यही बोल रहे हैं कि जब अथॉरिटी के पास ये पावर है कि to put pressure on these people to get the money into the project, why was the authority not able to do that in 6 months? 3 बार लेटर लिख के उनको वार्निंग लेटर रजिस्टर करो, नहीं तो आपको हम एक्शन लेंगे। वो एक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू दी रेरा एक्ट दे विल पुट बिहाइंड द बार्स। वी आर ओनली सेइंग फॉलो। नहीं, आप कंप्लीट कराना चाहते हैं प्रोजेक्ट या आप ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं कि वो जेल चले जाए? नहीं, हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं और आप हमारा कंप्लेंट देखेंगे। हम कहीं पे भी पेनल्टी की बात ही नहीं की। हम बोला हमारा घर दिलवा दो। हमारा पॉइंट यही है कि जब बोल रहे सर घर हो जाएगा 2 साल में, हम पूछ रहे सर पैसे कैसे आएगा इसके अंदर, कौन लगाने वाला है? फायर तो लगाने वाला नहीं है, जो देना दे दिया हम लोग। 700 करोड़ जो लेके चले गए,
पैसे लेके आइए और बनवाइए, हमें दिखाइए कैसे पैसे आएंगे, कैसे बनेगा। वी आर ओके, वी आर हैप्पी विद द ऑर्डर इफ दीस 3 पॉइंट्स हैव बीन कैप्चर्ड इन द ऑर्डर। लेकिन ऑरेंज का लॉयर तो कह रहा है पैसा कहीं से भी आएगा, प्रोजेक्ट बना के दूंगा आपको। हम ऐसा नहीं कहा है। दैट्स व्हाट डॉक्टर मिस्टर डैंग जो पुलिस को रिप्रेजेंट करते हो तो बोल रहे हैं सर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम तो एहसान कर रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आप हमें प्रेशर करके करवा रहे हैं काम, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ कैन ही से दैट? और जज साहब भी बोल रहे हैं यार वो तो एहसान कर रहे हैं, तो गुप्ता जी एहसान कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज हमें घर मिल जाए। एज हमारा रिक्वेस्ट था रेरा के साथ कि हमारा घर दिलवा दो, हमें कोई इनको अंदर नहीं भेजना है जेल के अंदर, ना ही हम लोग उनको कोई पेनल्टी अभी मांग रहे हैं। मैं बोला घर चालू करो, हम यही मांग रहे हैं, टाइमलाइन दिखाओ, बायर एक पैसा नहीं देगा, आप ऑर्डर में लिख दीजिए, और ऑर्डर में भी लिख दीजिए कि 700 करोड़ अंदर प्रोजेक्ट में वापस कैसे आएगा, कौन लगाएगा, कब लगाएगा, कैसे बनेगा। आप क्या कहेंगे? हमें हमारे जल्दी से जल्दी घर दिए जाएं, क्योंकि 2 साल एक बहुत लंबा पीरियड है और ये काम तो शुरू कर देंगे, वहाँ 30 लेबर कभी ले आए कभी 50 ले आए, उसका काम थोड़ी होगा। एक एक फेज करके ये हमें डिलीवर्ड करना शुरू कर दें, हमें लगेगा भी हमारा घर देने हमें एक फेज बिल्कुल तैयार है इनका, तो हमें कम से कम 2 महीने का या 3 महीने का पीरियड के अंदर कुछ 6 फ्लैट्स ऐसे करके दें, तो वो धीरे धीरे फिर सब ऐसे हमें लगेगा भी कि हमको फ्लैट्स दे रहे हैं। अदरवाइज तो 2 साल तक तो फिर हम फिर वेट करें इनका 2 साल तक, और 2 साल बाद फिर यही हालत होगी जो आज है, लेकिन जहाँ हम खड़े हुए हैं आज। लेकिन रेरा ने सोल्यूशन निकालना शुरू कर दिया है। आप रेरा अथॉरिटी के जो सॉल्यूशन निकाला है, लास्ट टाइम ये नहीं, इस बार है तो इस बार भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। 2 साल का लंबा पीरियड होता है, बहुत लंबा, पूरा स्ट्रक्चर बना खड़ा हुआ है, कुछ फ्लैट्स में तो बिल्कुल कंप्लीट है, और थोड़ा बहुत हर फ्लैट का फ्लैट टू फ्लैट पोजीशन देना आज से भी शुरू कर सकते हैं ये, अगर पेनल्टी जमा कर दें, EDC IDC वगैरह ये सब जमा कर दें। इसमें ऑर्डर में क्या कहा गया है? ये ऑर्डर बहुत ही वेग है। दिस हैज़ टू बी अ क्लोज्ड लूप ऑर्डर, बिकॉज ये कहा गया है कि 2 साल में प्रोजेक्ट बन के तैयार कर दिया जाएगा। ये हम कसने वादे बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं, बिकॉज इट्स बीन 7 years नाउ, एंड रेरा में तो एक्चुअली जस्टिस लॉ को 60 days में मिलना चाहिए, इट्स बीन 6 months नाउ, राइट। इस ऑर्डर में कहा गया कि 2 साल में प्रोजेक्ट बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा वो नहीं बताया गया। हम लोग के सबके स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, सो इट जस्ट नीड्स अबाउट 6 to 9 months मैक्सिमम टाइम इफ दे पंप इन मनी। जज साहब को ऑर्डर देना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टीज अटैच करानी चाहिए, बिकॉज अगर बिल्डर इनको रोड मैप नहीं दे रहा है तो मैं कहाँ से फंड्स लेकर आऊँगा, तो जज हैज़ ऑल द अथॉरिटी टू ऑर्डर टू अटैच हिज प्रॉपर्टीज एंड जनरेट 700 करोड़। सेकेंड चीज़ ये है कि हेयरिंग 11 बजे की थी, 12:30 बजे कुछ हेयरिंग शुरू हुआ। जज साहब बिल्डर्स वगैरह के साथ बैठे हुए थे टू रीच टू अ रेजोल्यूशन, लेकिन कोर्ट में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही नहीं किया गया किसी कंज्यूमर को बोलने के लिए। इट वॉज लाइक अ वन साइडेड अफेयर, एंड जब हमने बोलने की भी कोशिश की, इवन आई ट्राई टू स्पीक इन द कोर्ट, एंड वो कोर्ट डाइवर्सिटी इशू बना दिया गया कि मैं एक जेंटलमैन हूँ इसलिए मैं तुम्हें बोलने भी दे रहा हूँ। एंड इवन अगर हमने क्वेश्चन किए, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन हमने पूछा कि अगर ये बिल्डर हमारे फ्लैट्स नहीं बना कर दिए जा रहे हैं तो और इसके एडिशनल प्रोजेक्ट्स विद गोदरेज क्यों रजिस्टर करने दिया जा रहा है, क्योंकि वो बेचारे कंज्यूमर्स भी परेशान होंगे। तो ये तो एक रेगुलेटरी बॉडी का बिल्कुल होना चाहिए कि हमें नहीं इसको आगे जाने देना है। उन पे उन्होंने बिल्कुल बहुत ही लोगों को इंसल्ट करते हुए बोला कि हाउ कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू मी इन माय कोर्ट, ये आपका लेना देना इससे नहीं है। एंड कुछ ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट्स दिए गए कि 5th को अब इन लोगों ने काम शुरू करना है, तो हमने बोला हम ये बात पहले भी हो चुकी है, बहुत सारे क्लीनर्स वहाँ पे आ जाते हैं, सफाई कर्मचारी आ जाते हैं, बट वो तो एक्चुअली में प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का इंटेंट नहीं होता। उन्होंने हमें इवन पर्सनल स्टेटमेंट्स दी गई, उन्होंने बोला कि इन लोगों को बुलाइए, पूड़ी आलू खिलाइए। इज रेरा अ जोक? इट इज नॉट अ जोक। वी हैव पुट करोड्स एंड करोड्स ऑफ मनी इन दिस प्रोजेक्ट। क्या फैसला आया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने फेजेस में जो है कंप्लीट करने के लिए बोला है और कितनी पेनल्टी लगाई गई है अगर 8 जनवरी से वो अपनी प्रोजेक्ट बहुत ही मिनिमल पेनल्टी है, बिकॉज इन लोगों ने हमसे 700 करोड़ रुपीज़ ले रखे हैं, तो 50 करोड़ रुपीज़ उसमें डिपॉजिट कराना एक इंटेंट नहीं है। और अगर इंटेंट साबित करना था तो जज साहब के पास अथॉरिटी है और बोल सकते हैं कि अब आज ही अगर प्रोजेक्ट बनाना ही शुरू करना है 5 जनवरी से, तो वो आज डिपॉजिट कराए ना, उसको आज ऑर्डर दिए जाए कि आप 5 दिन 10 दिन में अपना इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाइए और अपना इंटेंट शो कीजिए। 700 करोड़ हमसे ले चुके हैं, तो 50%, 60%, 70% अमाउंट अब अगर आज नहीं मांगेंगे, 5% इज नथिंग। 50 करोड़ से कहीं पे भी प्रोजेक्ट
नहीं जाने वाला। आई एम टेलिंग यू दैट ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम पास्ट फ्यू हियरिंग्स इन रेरा, दैट रेरा हैज़ अ वेरी वेरी सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स द बिल्डर्स, एंड इफ दिस इज द काइंड ऑफ इंटेंट दे आर गोइंग टू मेंटेन, देन द consumers are going to lose faith. They will not come to RERA, they will go to NCDRC, they will go to High Court, they will go to Supreme Court, but this is not the platform they will ever choose. RERA was formed to protect the interest of the consumers, which is not being protected. So I would, and I don't know if it is happening in all RERAs, but with all due respect, खंडेलवाल साहब की जजमेंट में तो यही प्रूव हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जज साहब कि आप देखिए कि कितने लोग कस्टमर्स परेशान हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसके ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और हम चुप नहीं रहने वाले हैं। अब आगे आपका हमारा एक्शन प्लान, पहले हम ऑर्डर के लिए वेट करेंगे, और अगर इन लोगों ने ऑर्डर ही हमें 1-2 दिन पहले दिया तो हम उसके लिए आगे रिस्पांस भी कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अगर उन्होंने ऑर्डर पास करना है 2-4 दिन में बिल्कुल ऑर्डर पास करें, ताकि हम इसके ऊपर फिर आगे यहीं पे हमने प्रोसीड करना है। और जज साहब ने हमें ये भी बोला, अगर आपको ये पसंद आता है मेरा एक्शन प्लान तो करिए, नहीं तो आप जाके अपील करिए। I'm sorry, I'm not giving you any of the quotes, but is this how judges actually talk? That if you don't like what I'm telling you, please go and appeal against me. So if this is how the courts operate, then maybe, but I don't think so. This is the right culture that was created for everybody in the court.